friends, today I am welcoming you in our channel Rise to Success. So today we will start our second part of the chapter Life Process. So before starting our next topic, that is heterotrophic nutrition, I am going to revise the previous session which I have taught in part 1. So what I have taught in part 1, I have taught that light reaction happens there. In photosynthesis, there are two types of reaction, light reaction and dark reaction. So what happens in light reaction? The sunlight falls on the granum and the splitting of water takes place. 2H2O breaks down into 2H plus O2 plus electrons. So what, and उसमें से प्रोडक्ट क्या निकल रहा था? उसमें से O2 ऑक्सीजन मेसोफिल सेल के साइटोप्लाज्म में प्रोडक्ट निकल रहा था. लाइट रिएक्शन के बाद फिर डार्क रिएक्शन हो रहा था. डार्क रिएक्शन कहाँ हो रहा था? स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन हो रहा था. तो उसके डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल चल रही थी. केल्विन साइकिल मैंने आपको बताया है, RUBP वाला, जो कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस हो रहा था. एटमॉस्फेयर से 6CO2 प्लस H2O को लेके कार्बोक्सिलेशन हो रहा था. 3PgL, then tricose phosphate, then RUBPH, then again RUBP. The 6th cycle will complete. After the 6th cycle will complete, then 1 mole of glucose will form. So here the Kelvin cycle will happen in dark reaction, and after that glucose will form, and glucose will go in the mesophyll cell cytoplasm, and then glycolysis, and after that 2-pyruvic acid, and it is also called as 3-carbon 3C, and after that Krebs cycle, and Krebs cycle is also called as TCA cycle. TCA cycle, the full form of TCA is tricarboxylic cycle. And after Krebs cycle, what was coming as a final product? CO2 and H2O. So it was a revision of our part 1 topics. So we will continue towards our next topic, and that is heterotrophic nutrition, another type of nutrition. सो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं. जैसे प्लांट्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं. एंड देयर आर आल्सो अदर एनिमल्स लाइक लॉयन, टाइगर, डियर, गोट, sheep. Heterotrophic nutrition are of various types. Parasitic nutrition, saprophytic and holozoic. What are parasites? Parasites are the organisms who takes nutrition from other organisms without killing them. Means parasites वो होते हैं जो दूसरों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनको बिना मारे. सो एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल हो गए वर्म्स, मतलब जो पेट में हम लोग के इंटेस्टाइन में कीड़े होते हैं, तो वो हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं लेकिन हमको मारते नहीं हैं. हम मरते तो हैं नहीं. और दूसरा हो गया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म डेड और डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, मतलब मरे और सड़े गले सामानों से वो न्यूट्रिशन लेते हैं. और होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं जो सॉलिड फूड खाते हैं. जैसे हम लोग सॉलिड फूड खाते हैं और हम लोग के अंदर 5 प्रोसेस चलती हैं: इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेक्शन. तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोग आते हैं. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में यूनिसेलुलर को भी कंसिडर किया जाएगा और मल्टी सेलुलर को भी कंसिडर किया जाएगा. तो हम लोग यूनिसेलुलर में एमीबा का एग्जाम्पल लेंगे कि एमीबा अपना न्यूट्रिशन कैसे प्राप्त करता है. By drawing the diagram. So let's study the nutrition in amoeba. So this is amoeba. This is the structure of amoeba, which is unicellular organism. This is nucleus. So
here is food particle and the amoeba is trying to catch this food particle by forming pseudopodia. Pseudopodia means finger like projection. It is making, amoeba is making finger like projection to catch the food, and here it catch the food and now it will he will digest the food. मतलब amoeba ने फूड को कैच कर लिया है और अब इसको वो डाइजेस्ट करेगा। amoeba एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब इसका हर काम एक ही सेल से होगा, एक सिंगल सेल से। और उसके बाद ये नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में ये एब्जॉर्ब करेगा, उस फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि फूड लेने का हमारा मेन मकसद क्या होता है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेना और उससे एनर्जी गेन करना। तो उसमें जब ये एब्जॉर्प्शन कर लेगा, उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो फिर इसका काम हो गया, फूड बेकार हो गया। अब वो जो बेकार खाना है उसको इजेशन के माध्यम से मतलब बाहर छोड़ देगा। जो खराब खाना है, जैसे हम भी खाना खाते हैं, जो वेस्ट फूड होता है वो एनएस के द्वारा बाहर निकलता है, उसको भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद अब हम मल्टी सेलुलर पे आएंगे। मल्टी सेलुलर में हमारा एनसीईआरटी में क्या दिया हुआ, ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। तो हम अब ह्यूमन बीइंग के डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। चलिए अब हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे, डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग पढ़ेंगे। हमने स्टमक लिया है। अब स्टमक को, यहाँ स्टमक 3 पार्ट में डिवाइड होता है, एक फंडिक ग्लैंड, एक कार्डियक ग्लैंड, एक पायलोरिक ग्लैंड। स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। ये पार्ट होता है शुरुआती पार्ट फंडिक ग्लैंड, सेकेंड यहाँ पे बीच में होता है कार्डियक ग्लैंड और इधर लास्ट में यहाँ पे पायलोरिक ग्लैंड। अब स्टमक से 3 जूसेस सीक्रेट होती हैं, उसको कहा जाता है गैस्ट्रिक जूसेस, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, वो गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेट करता है। HCl, पेप्सिनोजन एंड म्यूकस। HCl क्या होता है, HCl स्टमक में 2% प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। स्टमक में एक ही चीज डाइजेस्ट होता है, वो है प्रोटीन, और वो सिर्फ 2% प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, HCl। उसके बाद पेप्सिनोजन। ये पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है, पेप्सिन एक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में है। और थर्ड इज म्यूकस। थर्ड जूसेस म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टमक। मतलब HCl इतना खतरनाक होता है, HCl आप केमिस्ट्री में सुने होंगे, HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो इतना खतरनाक होता है कि किसी भी चीज़ को जला सकता है। तो हमारा स्टमक भी एक ऑर्गन है, उसको भी वो जला सकता है। इसलिए म्यूकस एक लेयर होती है, म्यूकस जो स्टमक को बचाती है HCl के प्रभाव से। HCl नहीं तो हमारा स्टमक जल गया होता अब तक। और ये तीनों जूसेस कौन सीक्रेट करता है, ऑक्जेंटिक सेल, चीफ ज़ैमोजेनिक एंड नेक्स्ट सेल। ये 3 सेल्स होती हैं लीवर में। और लीवर किस सेल का बना होता है, लीवर बना होता है हेप्टिक सेल का, लीवर हेप्टिक सेल का बना होता है। और ये 3 सेल्स होती है लीवर में जो जूसेस सीक्रेट करती हैं, तीनों, जिसका मैंने अभी फंक्शन बताया। ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चीफ ज़ैमोजेनिक, पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म। नेक्स्ट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस, सॉरी नेक्स्ट सेल सीक्रेट करता है म्यूकस। अब पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में, तो ये काम कैसे करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव होना पड़ता है। एक्टिव कौन करता है, HCl ऑक्जेंटिक सेल सीक्रेट करता है। तो पेप्सिनोजन को HCl पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, जब ये, और ये एक्टिव फॉर्म में हो गया। और प्रोटीन जो हमने बताया कि HCl 2% प्रोटीन डाइजेस्ट करता है हमारे स्टमक में। तो इस प्रोटीन को HCl डाइजेस्ट करता है और HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। और प्रोटीन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है हमारा पेप्सिन, क्योंकि ये एक्टिव फॉर्म हो गया, तो इसको 2% वो डाइजेस्ट करता है और तोड़ देता है पेप्टोन में और प्रोटीज में। पेप्टोन प्रोटीज में वो प्रोटीन को तोड़ देता है, पेप्सिन। अब हम एक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद उसमें समझेंगे कौन कौन से ऑर्गन कहाँ होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन किस किस पार्ट में डिवाइड होता है, लार्ज इंटेस्टाइन किस किस पार्ट में डिवाइड होता है। तो चलिए हम डायग्राम पे आते हैं।
चलिए तब हम डाइजेशन के पूरे प्रोसेस को देखते हैं कि कौन कौन सा ऑर्गन कौन कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है डाइजेशन में और कौन कौन से रिएक्शंस होते हैं। तो यहाँ से हम खाने को इंजेस्ट करते हैं, मतलब इंजेक्शन होता है। ये है ओएसोफेगस, फूड पाइप, ये फूड पाइप है जिससे खाना अंदर जाता है। तो ओएसोफेगस में खाना अंदर जाता है तो उसमें एक पेरिस्टोलिक मूवमेंट होता है, मतलब ओएसोफेगस पचकता है फूलता है, पचकता है फूलता है। तो इससे खाने को अंदर जाने में आसानी होती है, मतलब खाना आसानी से अंदर पहुंच जाता है। तो खाना फिर कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है। स्टमक है ये, मैंने आपको इससे पहले बताया था कि स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फंडिक, कार्डियक एंड पाइलोरिक। तो ओएसोफेगस कहाँ मीट करता है? ओएसोफेगस जो स्टमक पे जुड़ता है कार्डियक पॉइंट पे, इस पॉइंट पे ओएसोफेगस स्टमक से मीट करते हैं, जो मिलता है। तो स्टमक को 3 पार्ट में डिवाइड है, फंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक। फंडिक, कार्डियक एंड दिस इज पाइलोरिक। उसके बाद जब स्टमक में क्या होता है, स्टमक में मैंने आपको बता दिया था कि HCl, पेप्सिन और म्यूकस होता है। म्यूकस जो स्टमक की लेयरिंग को प्रोटेक्ट करता है HCl से। HCl पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है और 2% प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, और पेप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन और प्रोटीज में कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद खाना आगे पास होगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो खाना आगे पास होगा तो ये लीवर है। लीवर का काम क्या है? बाइल जूस सीक्रेट करना, बाइल जूस सीक्रेट करना और गैल ब्लैडर में स्टोर करना। गैल ब्लैडर में बाइल जूस सीक्रेट स्टोर होता है। और बाइल जूस में क्या होता है? बाइल जूस में बिलिरुबिया एंड बिलिवर्डिन होता है। इन दोनों के मिक्सचर से बाइल जूस बनता है। और बाइल जूस का वर्क क्या होता है? बाइल जूस जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, मतलब जो फैट होता है उसको, कॉम्प्लेक्स जो ग्लोब्यूल्स होता है, मतलब फैट बड़ा बड़ा ग्लोब्यूल्स होता है, बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स के फॉर्म में होता है, उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है बाइल जूस। तो ये लीवर जब बाइल जूस सीक्रेट करता है तो ये गैल ब्लैडर में स्टोर करता है। उसके बाद गैल ब्लैडर से जो बाइल जूस है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है, क्योंकि जो भी रिएक्शंस होते हैं, मतलब जितना भी रिएक्शन होता है सब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में विलाई प्रेजेंट होता है जो डायरेक्ट ब्लड वेसल से कनेक्ट होता है, और वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में डायरेक्ट छोड़ देता है, जहां से हम न्यूट्रिएंट्स गेन करते हैं और हमारे हर एक सेल्स को न्यूट्रिशन मिलते हैं, जिसे हमारी बॉडी टिश्यू को रिपेयर करने में और एनर्जी गेन करने के लिए इस्तेमाल करती है। तो जब यहाँ से बाइल जूस गया स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ा, यहाँ से पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूसेस के बारे में बताऊंगा अभी, कई रिएक्शंस होते हैं उसमें। पैनक्रियाटिक जूसेस, और यहाँ स्टमक से खाना जा रहा है और यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पे चार जगह से कनेक्शन हो रहा है, एक लीवर से, एक पैनक्रियास से, एक स्टमक से, और एक यहाँ से खाना रिसीव करने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहाँ पे क्या बनता है? हेप्टो पैनक्रियाटिक डक्ट। इसको चौराहा कहते हैं, मतलब 4 जगह यहाँ मिल रहे हैं, तो इसको चौराहा कहते हैं हमारे बॉडी का। ठीक, तो जब यहाँ से खाना बढ़ा तो स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। ये ड्यूडेनम है जो स्टमक को और इंटेस्टाइन को जहाँ पे मिल रहा है, ये यहाँ पे एक स्फिंक्टर मसल होती है, मैं लिख देता हूं। स्फिंक्टर मसल होती है जो खाने की बैक फ्लो को रोकती है, मतलब खाना जब यहाँ पे स्टमक से पास करके इंटेस्टाइन में जा रहा है, अब इसका बैक फ्लो मत हो, मतलब पीछे से फिर स्टमक में मत घुस जाए, इसलिए स्फिंक्टर मसल होती है। जब ये खाना स्टमक से पास करता है तो ये खुल जाता है, उसके बाद तुरंत बंद हो जाता है कि ये वापस खाना ना आए किसी भी हालत में। तो स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन 3 पार्ट में डिवाइडेड, ड्यूडेनम, जेजुलम, इलियम। तो इलियम है, इलियम लास्ट वाला पार्ट है, जेजुलम बीच वाला है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में कई रिएक्शंस होते हैं। जब पैंक्रियाटिक, चलिए हम पैंक्रियाटिक जूसेस के बारे में देख लेते हैं, क्या क्या कौन कौन से जूसेस हैं पैंक्रियाटिक। ट्रिप्सिनोजेन, पहला जूस है ट्रिप्सिनोजेन, दूसरा जूस है काइमोट्रिप्सिनोजेन, तीसरा जूस है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेस, तीसरा एमाइलेस, चौथा लिपेस एंड पांचवा न्यूक्लियसेस। तो ये सब 5 जूसेस हैं जो पैनक्रियास से निकलते हैं और
स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं। तो ये जूसेस जाते समय किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। मतलब जैसे यहाँ पे इस स्टमक में पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में था, वैसे ये पांचों जूसेस इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो इसमें एक एंटेरोकाइनेस रिएक्शन होता है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो जूसेस घुसते हैं हेप्टोपैंक्रियाटिक डक्ट के जरिए, तो ये 6 जूसेस एंटेरोकाइनेस रिएक्शन की मदद से एक्टिव हो जाते हैं, मतलब घुसते ही एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, बाइल जूसेस से लीवर से बाइल जूस गया, इससे पैंक्रियाटिक जूस और स्टमक से खाना गया। तो अब इसमें सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब होता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में सब न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब किया जाता है, क्योंकि यहीं से न्यूट्रिएंट्स को ब्लड में छोड़ा जाता है विली के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती हैं पैंक्रियाटिक जूसेस के साथ। पैंक्रियाटिक जूसेस करती हैं ये सब रिएक्शन। जो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीज स्मॉल स्टमक में टूटा था, जो पेप्सिन तोड़ा था, मैं बता चुका हूं आपको। पेप्सिन जो प्रोटीन को 2 पार्ट में तोड़ दिया था, पेप्टोन और प्रोटीज में। सो प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटीज ये तीनों जब ये स्टमक से खाना पास करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में तो जाएगा ये। तो ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इस पर रिएक्ट करेगा, तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं खाने में। सो कार्बोहाइड्रेट को कौन डाइजेस्ट करेगा? एमाइलेज इसको कन्वर्ट करेगा डाइसैकेराइड में। फैट को कौन डाइजेस्ट करेगा? लाइपेज इसको डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करेगा। डाई फॉर्म में है अब ये, तो इसको और छोटा करने के लिए, क्योंकि फैट ग्लोब्यूल्स है, तो इसको और छोटा करेगा मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगा, फिर से लाइपेज पर रिएक्ट करेगा। उसके बाद ये न्यूक्लियसिक एसिड जो है उसको न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद फिर न्यूक्लियस पे रिएक्ट करेगा तो न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सब रिएक्शंस होने के बाद जब ये खाना फिर आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर मसल होती है और यहाँ पे एक वॉल्व भी होता है, आइसोसेकल वॉल्व। ये भी एक स्फिंक्टर मसल की तरह काम करता है, जो खाने के बैक फ्लो को रोकता है। स्पेशली यहाँ स्फिंक्टर मसल हम कहेंगे क्योंकि वो हर जंक्शन पॉइंट पे होता है, लेकिन यहाँ पे अगर हम नेम लें तो आइसोसेकल वॉल्व ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, सिकम, कैलोन, रेक्टम। तो सिकम ये वाला पार्ट है जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है यहाँ का, ये सिकम है। उसके बाद कैलोन ये पूरा है, यहाँ से लेके ये पूरा यहाँ तक कैलोन है। ये असेंडिंग कैलोन है क्योंकि ये छोटे से ऊपर जा रहा है। हम जानते हैं छोटे से ऊपर जाने को असेंडिंग कहते हैं। तो ये असेंडिंग कैलोन है, ये ट्रांसवर्स कैलोन है, ये डिसेंडिंग कैलोन है। और ये यहाँ पे हमारा मिल जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन का तीसरा पार्ट जो है रेक्टम, जहाँ पे जो वेस्ट मतलब सब्सटेंस है, यहाँ पे सब न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो इसमें होता है वो सारे खाने को एब्जॉर्ब करके, जहाँ सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके ब्लड में छोड़ दिया, क्योंकि वो कैपिलरी से कनेक्टेड होता है। तो उसके बाद जब ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो गए तो खाने, अब ये लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है? लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर्स एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं। जो खाने में वाटर प्रेजेंट होता है उसको एब्जॉर्ब करता है लार्ज इंटेस्टाइन। तो मतलब खाना एकदम बेकार हो चुका है, जो एकदम खाना बेकार हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, जिसकी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर सकती है अपने एनर्जी गेन करने के लिए। क्योंकि फूड हम क्यों लेते हैं? एनर्जी के लिए। तो जब उसमें कोई एनर्जी प्रेजेंट नहीं है, सब कुछ हो गया, तो ये रेक्टम में स्टोर हो जाती है। उसके बाद यहाँ एनस है जिसके द्वारा हम वेस्ट प्रोडक्ट को एक्सक्रीट कर देते हैं। यहाँ पे आप अपेंडिक्स देख रहे होंगे, तो अपेंडिक्स यहाँ कुछ नहीं है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका कोई मतलब नहीं है डाइजेशन में। और जो पैंक्रियाटिक जूसेस से हमने रिएक्शन देखे, वही सिर्फ रिएक्शन नहीं होते हैं, वो तो फर्स्ट स्टेज रिएक्शन होता है। उसके बाद भी एक रिएक्शन होता है, उसको हम देख लेते हैं। ये सब पूरा डाइजेशन का प्रोसेस, मतलब खाना कहाँ कहाँ जाता है, कहाँ से पास होता है, कौन कौन से ऑर्गन का क्या नाम है, कौन कौन सा डक्ट होता है, कहाँ का, मतलब ये सब खाने की पैसेज क्या थी, और हमने रिएक्शन भी कुछ देखे। तो अब पैंक्रियाटिक जूस का फाइनल रिएक्शन देख लेते हैं कि वो फाइनल
रिएक्शन क्या होता है, सेकेंड स्टेज रिएक्शन। तो जो हमने वहां देखा कि यहाँ पे डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट कर दिया था प्रोटीन को, तो डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज करेगा, इससे रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, अमाइनो एसिड, क्योंकि हम जानते हैं प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है, अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड। और वहां पे क्या हमने देखा, डाइसैकेराइड, कार्बोहाइड्रेट को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट किया जा रहा था, तो डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड को फिर से एमाइलेज से रिएक्ट होगा, फिर से एमाइलेज से रिएक्ट होगा, तो यहां पे हो जाएगा डाइसैकेराइडेज। उसके बाद यहाँ फैट वहां पे रिएक्ट हुआ तो मोनोग्लिसराइड में कन्वर्ट हुआ, तो हम मोनोग्लिसराइड को फिर से रिएक्ट करेंगे लाइपेज से, फिर से इसको ब्रेक डाउन करेगा। ये जूस जो फर्स्ट रिएक्शन में प्रोडक्ट मिला था फिर से रिएक्ट हो रहा है जो फाइनल प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होने के लिए, तो ये लाइपेज किसमें हो जाएगा, मतलब मोनोग्लिसराइड लाइपेज कन्वर्ट कर देगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। उसके बाद फाइनली न्यूक्लियोसाइड जो वहां पे था उसको न्यूक्लियोटाइडेज, कन्वर्ट करेगा किसमें, शुगर प्लस बेस। तो ये सेकेंड हो गया, फाइनल रिएक्शन हो गया पैंक्रियाटिक जूसेस का, और हमने डाइजेशन का प्रोसेस तो देख ही लिए। तो ये हमारा यहाँ डाइजेशन, ह्यूमन बीइंग का डाइजेशन खत्म होता है। आप जो डायग्राम ड्रॉ मैंने किया था उसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं कि ड्रॉ द डाइजेस्टिव ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट्स। सो पार्ट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको लेबल करने के लिए हमेशा बोर्ड में पूछा गया है, सो उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। In NCERT there is something about teeth, so we will read something about teeth. In teeth, first we will learn about dentine. Dentine, arrangement and structure of teeth is called as dentine. Means arrangement of teeth. How tooths are arranged in our mouth. So arrangement and structure. There are 4 different kinds of teeth in our mouth: incisor, canine, premolar, molar. So they all have different shapes. So they both when they both combine arrangement and structure, these both words are different. So when they both combine, the dentine forms. So it is a study of arrangement and structure of teeth. So dentine are categorized in 3 parts: diphodont, thecodont and heterodont. What is diphodont? Diphodont means 2 types of teeth. We have 2 types of teeth. We know that milk teeth and permanent teeth. मतलब दूध का दांत, जो बच्चों का दूध का दांत निकलता है उसके बाद फिर परमानेंट टीथ हो जाता है। तो दूध के दांत कितने होते हैं? 20. 20 teeth are temporary and 32 are permanent. And what is thecodont? Thecodont means arrangement of teeth in jaw socket. हम जानते हैं हमारा teeth एक जॉ में, एक जो teeth है उसका एक जॉ है,
एक सॉकेट में बैठा हुआ है, अंदर एक सॉकेट है, उसमें एक एक टीथ बैठा हुआ है। ये जो हमारा जबड़ा, इसमें सॉकेट है, उसमें टीथ बैठा हुआ है, इसको थेकोडोंट कहेंगे। हेटेरोडोंट मीन्स अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग हेटेरोडोंट में आते हैं, जिसमें हम लोग के पास चारों तरह के दांत है। जैसे डियर हो गया, जिराफ हो गया, जो लोग घास फूस खाने वाले हैं उनका सिर्फ एक तरह का चीज होता है, इंसीजर, चबाने वाला सिर्फ। जैसे और टाइगर हो गया, वो सब फ्लेश खाने वाले, मांस खाने वाले हैं, तो उनका कैनाइन होता है। और हम ह्यूमन बीइंग हो गए, हम लोग ओमनीवर्स में आते हैं। ओमनीवर्स में आते हैं इसलिए हम लोग के पास 4 टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो इसको डेंटल लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? डेंटल लैंग्वेज में ICPM मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। तो डेंटल लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे? 2 इंसीजर होते हैं, ये टेम्परेरी टीथ का है, ये टेम्परेरी टीथ का डेंटल फॉर्मूला है। 2 इंसीजर होते हैं, एक कैनाइन होता है, प्रीमोलर एक भी नहीं होता है, मोलर 2 होते हैं। तो 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 मतलब 2, जो हम लोग का ऊपर नीचे दोनों जगह दांत होते हैं ना, ICPM M, तो इसको 2102 अपॉन 2102 इंटू 2 करेंगे इज इक्वल टू 20, मतलब हमारा टेम्पोररी टीथ 20 आ गए। अब परमानेंट की अगर बारी आएगी तो परमानेंट में क्या है? 2123 मीन्स 2 इंसीजर, एक कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर। मीन्स अगर हम पूरा टोटल 32 टीथ का देखें, 6 हमारा मोलर, 4 प्रीमोलर, 2 कैनाइन, 4 इंसीजर इज इक्वल टू 32। तो ये तो हो गया हम लोग के पूरे टीथ का स्ट्रक्चर, डिजाइन और डेंटाइन का। और हम जानेंगे कि टूथ डिके क्या होता है, दांत में सड़न आती है, कैविटी हो जाता है, तो कैसे होता है। देखिए बच्चे होते हैं जो स्वीट्स खा के, मतलब बच्चों को स्वीट्स खाना बहुत पसंद होता है, चॉकलेट खा के, रात में चॉकलेट खाए सो गए, तो उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो जो शुगर होता है उसको बैक्टीरिया एसिड में कन्वर्ट कर देता है। जो हम लोग के टीथ पे इनेमल होते हैं, जो हार्डेस्ट कवरिंग ऑन द टीथ होता है, शाइनिंग एंड हार्डेस्ट कवरिंग ऑन द टीथ, उसको क्या करता है? उसको गला देता है, उसको खराब करने लगता है, उसको कमजोर, उसको सॉफ्ट बना देता है। तो उससे हमारे टीथ कमजोर हो जाती हैं। और उसके बाद क्या होता है? और ये होता है कि जब हम खाना खा के रात में सो जाते हैं बिना कुल्ली किए, या बिना मुंह में पानी किए, या फिर बिना ब्रश किए, तो क्या होता है? तो हमारा जो दांत होता है, कैविटी कहाँ होती है? या तो इस साइड या तो इस साइड, क्योंकि यहाँ कोना होता है। यहाँ सलावा के कांटेक्ट में बैक्टीरिया नहीं आती है कि उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो मैसिव अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया यहाँ पे, जहाँ फूड पार्टिकल होता है उससे स्टिक हो जाती है, उससे चिपक के बैक्टीरिया, जो मैसिव अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया उस पर चिपक जाती है, जिससे वो सलाइवा उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है, वहां पहुंच नहीं पाता है एकदम कोने में, इसलिए। और बैक्टीरिया उसको कवर भी कर लेता है, इसलिए उसको पूरी तरह से वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाता है। इसकी वजह से टूथ डिके होता है। तो ये सब चीजें हैं, और इसको हम प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं? रात में सोने से पहले ब्रश कर सकते हैं। दिन में 2 टाइम मतलब हमें ब्रश करना चाहिए, तो इससे हम टूथ डिके को प्रिवेंट कर सकते हैं। और स्वीट्स वगैरह हमें कम करनी चाहिए। तो ठीक है, ये हमारा टीथ का स्ट्रक्चर हो गया, टीथ के बारे में हमने कुछ जान लिया। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में रेस्पिरेशन स्टार्ट करेंगे, वो लाइफ प्रोसेस का पार्ट 3 रहेगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स।